मैं जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है वैसे मैं ट्राई करूँगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। मैं चाहूँ डॉक्टर बनना, कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा आप? हाँ टीचर अच्छे हैं। टीचर सारे बहुत अच्छे हैं, अच्छी पढ़ाई होती है बहुत। मुझे यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी लगती है, सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक शिक्षक जो है एक बच्चे के भावनाओं के लिए, उनके अंदर की भावनाओं को निकालने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि डिबेट हुआ, बैतबाजी हुआ, क्विज कंपटीशन हुआ, किसी की तबीयत खराब है तो मैं उसको ठीक करूँ, मुझे अच्छा लगता है। पहले मेरी दोस्त का था, उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी वही करूँगी। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, तो मैं एक भाई की वजह से किसी और को कत्ल कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहीन टीवी और मैं हूं मुशफिक खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार के किशनगंज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में। बच्चों ने अपना प्रोग्राम किया और यहां पर छात्र छात्राएं ने अलग अलग तरीके से अपने परफॉर्मेंस की प्रस्तुति दी। Respected Gandhiji, we must remember that our fight transcends boundaries of religion and caste. It is a fight for the soul of India. The youth shall be our beacon of heart. Let us educate and empower them stand as one. अल्लामा इकबाल, the poet who wrote सारे जहां से अच्छा हिंदू सिला हमारा, he also wrote, perhaps with his belies India, he anticipated that what kind of nation will be so-called free nation. So he says that आप बताओ तुझको रमज़े आए थे इन्नल मलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है जादूगिरी, ख्वाब से बेदार होता है जरा महकू मगर फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की साहरी. Today when we look India, its political discourse, we find that सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा was a fiction, and the reality is that only bunch of people are free today. Good afternoon to you all. Honorable Chairman, the House has decided that the political leaders and bureaucrats have failed to implement the Indian Constitution, and Idam staying here to oppose the motion of the House. Respected Sir, our Constitution is a comprehensive document that outlines the rights and duties and principles that governs it. It is a complex task to ensure that every provision is effectively translated into action. The political leaders and bureaucrats are facing multi-layered challenges. They are continuously going through a complex wave of political, social and public expectations and administrative hurdles. Respected Sir, the Constitution of India is not God's decree, but it is a man-made process of implementing laws. It takes time, but I can accept it that there are instances where we maybe look like that we have failed. But in most of the cases of human life, the relationship with the state and the citizen has been implemented as per the Constitution of India. Honorable Sir, it is a matter of the way you look at things. You can say, look the half glass empty. Like my opponents believe, as we cannot say the water which is present in the glass, which is sufficient to satisfy our thirst. Sir, in last 76 years, India has been successfully implementing democracy, freedom, socialism and other objectives of the Constitution. I therefore strongly oppose the motion of the House that the political leaders and bureaucrats have to implement our Constitution. Thank you so much. मिर्जा गालिब टीम की तरफ से गाना इसे समझकर खुश होना सुनने वालों, गाना इसे समझकर खुश होना सुनने वालों, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, आज तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आखिरी हिचकी तेरे जानों पे आता है, मैं मौत भी शायराना चाहता हूँ। ये क्या के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये क्या के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। नलय बुलबुल के सुनो रहमतन गोश रहूं, नलय बुलबुल के सुनो रहमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं।
मैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में मौजूद हूं। अभी आपने देखा कि छात्र छात्राएं ने अपना प्रोग्राम दिया, अलग अलग प्रस्तुति पेश किया और एक से एक बढ़कर प्रस्तुति पेश किया। मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की छात्राएं मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मारिया अर्श है। किस क्लास में यहाँ पे आप शिक्षा प्राप्त कर रही हैं? मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। आज का जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम की तैयारी किस तरह से हुई और किस तरह से प्रोग्राम की तैयारी कराई जा रही है? प्रोग्राम की तैयारी बहुत अच्छे से की जा रही थी। हम उसमें हमारे सारे टीचर हमें सिखा रहे थे कि कैसे प्रोग्राम करना चाहिए। जैसे कि डिबेट हुआ, बैतबाजी हुआ, क्विज़ कंपटीशन हुआ। क्विज़ कंपटीशन में पहले रिटर्न हुआ, उसमें से फिर स्टूडेंट को जो अच्छे स्कोर के मार्क्स स्कोर किए फिर उसमें से चुना गया, फिर टीम बना करके फिर कंपटीशन हुआ। उसी तरह डिबेट कंपटीशन हुआ जिसमें हमारे प्रिंसिपल सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करा। और उसी तरह बैतबाजी हुआ, जैसे हमारे डायरेक्टर सर और महफूज सर वो भी बहुत अच्छे से हम सबको तैयारी कराए। अभी आप 10th क्लास में पढ़ रही हैं, इसके बाद आपका एम्बिशन क्या है, एम क्या है खुद की लाइफ में? मैं इसके बाद मतलब क्या बनना चाहती हैं आप बड़ी होकर? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसके बाद डॉक्टर का ही फील्ड क्यों चुना है? क्यों मुझे अच्छा लगता है, किसी का ट्रीटमेंट करना मुझे अच्छा लगता है। इसी वजह मतलब मैं चाहूँगी कि मैं किसी की तबीयत खराब है तो मैं उसको ठीक करूँ, मुझे अच्छा लगता है। और भी छात्राएं मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम काटवा नाजिर है। किस क्लास में आप? मैं क्लास 9 में पढ़ती अभी। तो आपका एम्बिशन क्या है, आगे चल के क्या बनना चाहती है? मैं भी वही डॉक्टर करना चाहती हूँ। डॉक्टर बन के सेवा कैसे कीजिएगा लोगों की? मैं सबकी हेल्प करूँगी, जिसको ज़रूरत होगी मेरी मैं उसकी हेल्प करूँगी, और ख़ास करके मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा जी। इसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है आपको? क्योंकि इसमें बहुत कम लोग इस फील्ड में आते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट में। अच्छा। और मेरी दोस्त भी वही करना चाहती है। तो ऐसा तो नहीं कि दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि हम दोनों यही करेंगे? जी या खुद का डिसाइड था ऐसा? ऐसे कोई डिसीजन नहीं लिए थे मैंने, मगर पहले मेरी दोस्त का था, उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी वही करूँगी। एक अच्छे स्कूल की छात्रा होने के नाते क्या संदेश देंगी? मतलब कि बिहार के लोग ऐसे नहीं जैसे बाहर के लोग सोचते हैं हमारे बारे में। बिहार बहुत अच्छा है और जैसे वहाँ से बहुत अच्छे लोग निकलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नुसरत जहाँ। आप किस क्लास में पढ़ाई कर रही हैं? मैं 10th में ही हूँ। आपका क्या फ्यूचर प्लान है, क्या बनना है बड़े होकर? मेरा फ्यूचर प्लान, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है तो मैं बायो में ऑब्वियसली है तो प्लांट्स के बारे में जानूँगी और फिर दवाइयाँ वगैरह ये सब जो होता है ये सबसे रिलेटेड पढ़ाई, फार्मेसी। तो मतलब भारत देश को फिर से बनाना है, वहाँ हरियाली पैदा करना है, यानी ये नारा फिर से गूंजेगा, हरा रंग है हरी हमारा धरती की अंगड़ाई। हरियाली तो भारत में पैदा हो जाएगी बस पेड़ लगा के ही, लेकिन हरियाली मेरे ख्याल में तब पैदा होगी जब लोगों का सोच अच्छा होगा, ताज़ा होगा। आपका नाम क्या हुआ? निदा फातिमा। सामने आ जाना। निदा फातिमा। आप अभी किस क्लास में? मैं 10th क्लास में हूँ। आपकी क्या तैयारी है, क्या बनना है बड़े होकर? मैं एक अच्छी ईमानदार काबिल जज बनना चाहती हूँ। अदालतों पर क्या लोगों का भी भरोसा है? उसको आप अगर आप बनेंगी, ईमानदार होंगी तो उसको कायम रख पाएंगी? मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे गांव में अल्ताबाड़ी नाम है मेरे गांव का, वहीं फ़िलहाल एक हादसा हुआ। मतलब एक भाई की वजह से किसी और को कत्ल कर दिया गया। अच्छा। मतलब अभी तक वो उनकी वाइफ है, वो अभी तक उसके लिए लड़ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही लोगों को इंसाफ, अच्छे से इंसाफ दिला सकूँ, क्योंकि लोग इंसाफ के लिए तड़पते रहते हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम इकरा फातिमा है। आप किस क्लास में? मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। यहाँ इस स्कूल में किस तरह का माहौल है, यहाँ पे एजुकेशन की व्यवस्था कैसी है, किस तरह की शिक्षा दी जाती है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत तहजीबी माहौल है और यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग भी होती है एंड अच्छे से मतलब तहजीब से। क्योंकि इतना रॉयल नाम है ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश पे तो ज़्यादा फोकस किया जाता होगा। तो क्या यहाँ के बच्चों के कल्चर में इंग्लिश है, और अगर इंग्लिश है तो फिर वो कितना ज़रूरी है सीखना हर लोगों के लिए? कहा जाता है कि बिहार के लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता है। यहाँ के बच्चों के कल्चर में इंग्लिश है, बट कुछ बच्चे हैं जो अभी नहीं बोल पाते, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं कि बोलें, वो अच्छा से अच्छा करें और यहाँ इंशाल्लाह यहाँ से निकलते निकलते वो अच्छे से अच्छे इंग्लिश सीख करके जाए, अच्छे से अच्छा वोकैबुलरी हो जाए। आपका एम्बिशन क्या है? मेरा एम्बिशन
मैं पायलट बनना चाहती हूँ। पायलट बनना चाहती हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। पायलट बन के क्या सेवा करना चाहेंगी देश की? मैं ये एयर फाइटर में जाना चाहती हूँ, आर्मी। चलिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका नाम क्या हुआ? सबा। आप किस क्लास में? 10th। आपकी क्या तैयारी है, क्या एम्बिशन है, क्या बनना चाहेंगे? टीचर। टीचर। तो वैसे शिक्षक छात्राओं को किस तरह की शिक्षा दे पाएंगे, फिर क्या वो छात्र और छात्राएं आगे बढ़ पाएंगे? मेरे हिसाब से वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल में आजकल पढ़ाई बहुत कम होती है। कोई स्कूल ही ऐसा है जो मतलब होती है कि चलो हाँ वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, और गवर्नमेंट से जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो थोड़ा सा मतलब होते हैं कि अगर वो ट्राई करना। आपका नेम क्या हुआ? खदीजा रहबत। आप किस क्लास में? 9th। अभी किस तरह की तैयारी चल रही है, आगे आपका क्या एम्बिशन है? डॉक्टर बनना, कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, आप दोनों ने साथ में प्लान किया है। आप डॉक्टर बनती हैं तो लोगों की किस तरह से सेवा करेंगे? डॉक्टर मैं बनना चाहती हूँ तो सेवा तो जैसे अगर मेरे पेशेंट आएंगे उसके हिसाब से, उनके हेल्थ रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेल्प करूँगी। और वही बात, बिहार में भले ही इतनी एबिलिटी ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर तो खैर बिहार में भी बहुत अच्छे हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि जो हो सके वो काफ़ी गरीब लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, दबे कुचले लोग बहुत ज़्यादा हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की जान चली जाती है पैसे की बिना पे, और बहुत से डॉक्टर ऐसे भी कठोर दिल हैं जो उनकी सहायता नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते हैं। अगर वैसे पेशेंट आपके पास पहुँचेंगे तो उन लोगों के लिए आप क्या करेंगी? डॉक्टर जो मुझे बनना है तो वो सिर्फ पैसा तो है ही, फिर दूसरे तरीके से होता है कि लोगों की हेल्प करने के लिए। तो हेल्प तो ठीक ही है, फिर साथ में जैसे मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट लोगों के हिसाब से, जैसे कि हेल्थ कंडीशन जो भी है, पैसे हिसाब से वैसे हेल्प करूँगी। शिक्षक कैसे हैं? पहले मैं स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ तो स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ने के लिए भी अगर पढ़ाई होगी तो ऑफकोर्स स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेंगे। फिर बात करें तो टीचर्स की, तो हाँ टीचर्स अच्छे हैं। टीचर्स भी अच्छे, सब कोई अच्छे हैं। सबसे अच्छे टीचर कौन से हैं? किस टीचर को सबसे बेस्ट मानती है आप स्कूल? बैठे हुए सामने फरहान सर जो मुझे बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैं उनके हर एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल भी मार्क्स लेके आती हूँ। अच्छा, तो इसलिए तो वो फेवरेट नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है? नहीं, मार्क्स मैं अपने मेहनत से लेके आती हूँ। ये पढ़ाई की बात कर रही हूँ मैं, पढ़ाने में जो होता है मेरे फरहान सर फेवरेट टीचर है। मेरे साथ और भी छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में। बेटा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सरस्वती कुमारी है। आप किस क्लास में हो? मैं 8th क्लास में हूँ। सरस्वती, यहाँ पर शिक्षा का किस तरह का व्यवस्था है, किस तरह की शिक्षा दी जा रही है? टीचर्स सारे बहुत अच्छे हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत एजुकेशन अच्छा मिल रहा है। तो अब पढ़कर क्या बनना चाहती है? मुझे डीएम बनना है। वाह, इनको पढ़कर डीएम बनना है। आपने डीएम बनने का ही क्यों सोचा? क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, तो मैं देखती हूँ सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर आम बात है, इसलिए मैं डीएम बनना चाहती हूँ। बहुत सारे गरीबों को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए कुछ करना चाहूँगी मैं। और यहाँ पे ऐसे जानवर सब के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उन लोग के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी सोच है। आपका नाम क्या हुआ? हमीदा सिद्दीकी। कैमरा सामने कर। आप अभी किस क्लास में हैं? 8th क्लास में हूँ। आपकी किस तरह की तैयारी चल रही है अभी? यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी है? मुझे यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी लगती है, सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सब पे ध्यान देते हैं। मुझे यहाँ की शिक्षा बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्यों? क्या आपका क्या है एम्बिशन, क्या है? डॉक्टर बनना? जी, मुझे डॉक्टर बनना पसंद है, और बायोलॉजी हमारे फरहान सर पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और इनकी मुझे बायोलॉजी से जानकारी लेना बहुत पसंद है बचपन से। अब हमारे साथ सर मौजूद हैं, फरहान सर, और काफ़ी बच्चों के, छात्राओं के चहेते टीचर हैं और बायो क्लास लेते हैं। तो सर, किस तरह से शिक्षा दी जा रही है? क्योंकि बच्चों का अलग अलग फील्ड में काफ़ी रुचि है। कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहती हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहती हैं, कोई पायलट बनना चाहती हैं। तो एक शिक्षक बच्चों की अंदर की भावनाओं को किस तरह से पहचानता है और फिर उन्हें उस योग तक पहुंचाने के लिए किस तरह का कार्य करता है? एक शिक्षक जो है एक बच्चे के भावनाओं के लिए, उनके अंदर की भावनाओं को निकालने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि एक शिक्षक ही जान पा रहा है कि इस बच्चे को
इस बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में रुचि है, इंटरेस्ट है, और उस हिसाब से वो बच्चे के साथ ट्रीट करता है। हमारे यहाँ जो क्लास 9-10 के जो फैकल्टीज़ हैं बहुत अच्छे क्वालिटीज़ के, जैसे जुल्फ़िकार सर जो SST पढ़ाते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, और डायरेक्टर सर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाते हैं, मैं बायो पढ़ाता हूँ, और भी सारे टीचर्स हैं, एक से एक वेल क्वालिफाइड और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ट्रीट करते हैं ताकि बच्चों को मैं सही तरह से गाइड कर सकूँ। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग इंडिविजुअली उस बच्चों को अलग से ट्रीट करते हैं, और जिस फील्ड में उसको दिक्कत होती है वहाँ से हम लोग फिर अलग से ट्रीट करके उसको होमवर्क अच्छे से देते हैं। अलग से मतलब होमवर्क तो एक क्लास में मिलता ही है, अलग से एक होमवर्क देते हैं, मैथ्स में हुआ चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो सारे सब्जेक्ट में। लेकिन वैसे बच्चे जो अभी भी स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं या उनके माता पिता उतना परिपक्व नहीं है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, तो वैसे बच्चों के लिए एक शिक्षक होने के नाते आप अपने दिल में किस तरह का दर्द महसूस करते हैं? देखिए, कुछ ऐसे मतलब फैमिलीज़ है जो इन चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और जो है काम के लिए बच्चों को भेज देते हैं ताकि अर्निंग कर सके, कुछ घर बार चला सके। तो ऐसे इसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है, उसको एजुकेशन सही तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो एक दुख तो है, लेकिन हम लोग जो एक छोटे दायरे में हम लोग कर भी रहे हैं, और जो बच्चे उस लेवल में पहुंच नहीं पा रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ छूट भी दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसमें कोई ये नहीं। शाहीन टीवी के माध्यम से यहाँ के छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देंगे? संदेश यही देना है कि सारे बच्चे एक खुश दिली के साथ पढ़ें, अपने मुकाम को हासिल करें, और इस देश के लिए, अपने बिहार राज्य के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। क्योंकि आपने ज़्यादातर बच्चों से ये कहा कि हम लोग का बिहार बहुत पिछड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं एहसास हो रहा है। मुझे फील हो रहा है, मुझे इस बात का प्राउड फील हो रहा है कि मैं बिहार से हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग हमारे बिहार से गुजरे गए हैं, और बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स भी हमारे बिहार से हैं। तो मुझे गर्व महसूस हो रहा है इस चीज़ से। और आज भी अगर IAS की बात करें, UPSC क्वालिफाइड की बात करें, तो हर एक 10 UPSC क्वालिफाइड में से एक बिहार का स्टूडेंट रहता है, तो पिछड़ा कहाँ से रहा। ये बात अलग है कि ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, इंशाल्लाह और भी ग्रो करेगा, और हम लोग एक नए मुकाम पे देखेंगे बिहार। यहाँ पर आपने देखा बहुत सारी छात्र थी और सब ने अलग अलग तरीके से अपनी राय रखी है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या बिहार में उनका जो एम्बिशन हो, किसी का पायलट बनने का, किसी के डॉक्टर बनने का, और सब लोग ये चाहती हैं कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ और आगे बढ़कर अपने देश का, अपने गाँव का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, और जिस डिपार्टमेंट पे भी हम जाएं वहाँ पर पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से काम करें। मेरी भी ये शुभकामनाएं हैं इन छात्र छात्राओं के साथ कि ये आगे बढ़ें, अपने गांव का नाम रोशन करें, और जिस फील्ड में भी जाएं वहाँ पर लोगों की दिल से और ईमानदारी से सेवा करें।